So these are markers finger lipids that help in the identification of blood types. ठीक है, तो ये ब्लड टाइप्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है. नाउ एंड इससे हमारा क्या एक्सचेंज होता है ब्लड. किसने ढूंढा था इसको? तो दिस वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टाइनर एंड फॉर विच ही हैज बीन अवार्डेड नोबेल प्राइज. समझ रहे हो? So they were discovered by Carl Landstein in 1901. He received the Nobel Prize in 1930 for this discovery. समझ रहे हो? तो देख रहे हो कि सुबह सुबह नोबेल प्राइज मिल गया आपको. नाउ ये जो टाइप है, ओके, so ABO blood types are also present in other primates such as apes and old world monkeys. ठीक है, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज मतलब जो हमारे इंडिया में मिलते हैं. इंडिया, ईस्ट एशिया, इसको ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है. अफ्रीका, अमेरिका इज कॉल्ड द न्यू वर्ल्ड, याद रखना. ओके, सो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, तो इन सब में ये मिलता है. ठीक है जी. सो दिस इज द कंसेप्ट. तो इसलिए पहले सबसे फर्स्ट उन्होंने यूज किया था क्या? दे यूज्ड जो लैंडस्टाइनर यूज्ड ABC. ठीक है जी. थोड़ा हिस्ट्री लिख लेते हैं. एंड ये एक ऐसा है जो लोग टेस्ट दिए नहीं हो वेबसाइट पे आज भी दे सकते हो. मैंने डेट एक्सटेंड कर दिया है. ठीक है, तो कार्ल लैंडस्टाइनर used the terms A, B and C. ठीक है, उन्होंने ABO यूज नहीं किया था. उन्होंने A, B and C अल्फाबेट्स यूज किया था. ठीक है जी. तो लैंडस्टाइनर यूज ABO कंसेप्ट. ना उसी तरह से जो उसमें उन्होंने क्या देखा, दैट जो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप है कि नहीं, तो उसमें आपका उन्होंने एक्सचेंज देखा एंड दे सॉ दैट देयर इज आल्सो रिजेक्शन. So based on this, he classified human blood in 3 groups, A, B and C. He defined that group A blood agglutinates with group B. Agglutinate का मतलब क्या होता है? क्लॉटिंग कर जाता है, बट नेवर विथ इट्स ओन टाइप. ठीक है, तो अगर B को B दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर B को A दे दोगे तो क्लॉट कर जाता है. ग्रुप C इज डिफरेंट इन दैट इट agglutinates with both A and B. ठीक है, तो ये सब उन्होंने देखा, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो दिस वाज द डिस्कवरी ऑफ blood groups for which Landsteiner awards a Nobel Prize. In his paper, he referred to the specific blood group interactions as isoagglutination. इसको हम लोग क्या कहते हैं? isoagglutination. And also introduce the concept of agglutinins या antibodies, which is the actual basis of the antigen antibody reaction in the ABO system. ठीक है, नाउ एंटीजन एंटीबॉडी क्या है थोड़ा देर में हम लोग डिस्कस करेंगे. So thus he discovered 2 antigens, A and B, and 2 antibodies, anti-A and anti-B.
His third group indicates absence of both antigens but contains both antibodies. समझ रहे हो? तो जो थर्ड ग्रुप है जिसको उन्होंने सी बोला था, वो जो है उसमें आपका दोनों एंटीजेंस एब्सेंट बट दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट. The following year, his students Adriano Sturley and Alfred von de Castello discovered the fourth type, but not naming it and simply referred to it as no particular type. तो इसी को फिर लोगों ने क्या कहा? AB. समझ रहे हो? So like that. In 1910, Ludwig In 1910, Ludwig, Hertzfeld, and Dungan introduced the term O for the group Landsteiner designated as C and AB for the type discovered by Sturley and de Castello. Okay? समझ रहे हो? तो उन्होंने O and AB शब्द को डिस्कवर किया. They were also the first to explain the genetic inheritance of the blood groups. Clear? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो एक साइंटिस्ट थे फेलिक्स बर्नस्टीन, तो उन्होंने देखा हाँ देख So Felix Bernstein demonstrated the correct blood group inheritance pattern of multiple alleles. So who told the concept of multiple alleles? It is Felix Bernstein. Okay, at one locus in 1924. ठीक है? तो actually उसके पहले the first practical use of blood typing was by American physician Ottenberg and the large scale application started during the First World War. Okay, तो इसीलिए इसका जो यूज है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो उसको the first practical use of blood typing in transfusion was by American physician Ottenberg in 1907, and the large-scale application started during the First World War when citric acid was developed as a blood clot prevention. Okay, इसको हम लोग क्या कहते हैं? CPD. CPD या citrate phosphodextrose. Okay, the citrate phosphodextrose was developed as blood clot prevention. तो अगर आप citrate जो दोगे तो वो क्या करता है? You know what it can do? बताइए, ये हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं. तो which ion helps in blood clotting? बताओ, कौन सा आयन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? बोलो. Which iron helps in blood clotting? अरे गेस तो करो. क्लास एंड कर दें. नो सर. तो क्यों बोल नहीं रहे हो? वाई आप बार बार आप जानते हो कि साइलेंट बैठने से मैं चिढ़ता हूँ, तो आप क्यों चुपचाप बैठे रहते हो?
भाई कौन सा आयन है ब्लड क्लॉटिंग का, यू कैन गेस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग्स। अब पुराना पार्ट कुछ भी पढ़ते नहीं हो, याद नहीं रखते हो। सर कैल्शियम। बस तो क्यों गूंगा होके बैठे हो? कैल्शियम। सो citrates are क्या? Bivalent anions and they remove bivalent cations calcium from blood, so prevent blood clotting। समझ रहे हो? तो ये ब्लड क्लॉटिंग क्यों नहीं करने देता है? क्योंकि वो कैल्शियम आयन को हटा देता है, ना रहेगा कैल्शियम ना होगा ब्लड क्लॉटिंग। अंडरस्टूड? सो इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी था। इसलिए चुपचाप गूंगे से बैठने से फायदा क्या होता है? उसके बाद उसका जेनेटिक बेसिस आ गया। ओके, तो वाटकिंस एंड मॉर्गन, Watkins and Morgan in England discovered that abioepitopes were conferred by sugars to be specific N-acetyl galactosamine for A and galactose for B। समझ रहे हो? तो इसलिए जो एबियो में ए टाइप ब्लड किस कारण होता है, उसमें एन एसिटिल गैलेक्टोजामीन होता है, एंड बी क्यों होता है, गैलेक्टोज। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका बायोकेमिस्ट्री एंगल आ गया। ओके, तो दिस इज द कंसेप्ट। तो आफ्टर मच पब्लिसिटी, ओके, this is called the biochemistry of genetics. So after much published literature claiming that, तो उसके बाद फिन ने another scientist was there, फिन। क्योंकि ये जो मैंने ईच एंड एवरी लाइन लिखा है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है फॉर योर डिटेल, बट नाम पूछते नहीं है, और क्या, वो सिर्फ आपका उसके बारे में पूछ लेते हैं, बट उसका नाम नहीं पूछते। So Finn found that human RBCs, okay, so human RBC glycoproteins contain polylactosamine chains that contain ABH substances attached and represent the majority of the antigens। ठीक है, तो मैं दिखाऊंगा आपको, इसका फोटो दिखाऊंगा। तो ये आपका है, एंड अल्टीमेटली यामामोटो, उन्होंने देखा एक, दे फाउंड दैट द एंजाइम later Yamamoto's group showed the precise glycosyl transferase। तो एक्चुअली जीन क्या करता है, जीन ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम को कोड करता है। ओके, दैट कन्फर्स द एबियो एपिटोप्स। अंडरस्टूड? तो इसीलिए एबियो एपिटोप्स कन्फर कौन करता है, ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम। ठीक है, सो ये हमारा कंसेप्ट है। तो ये जो तो हमने बायोकेमिस्ट्री डिस्कस कर लिया इसका, एंड नेक्स्ट पॉइंट जो है जेनेटिक्स। तो ये जो मल्टीपल एलील्स है ये किस जीन में होते हैं। सो दिस इज द जेनेटिक्स ऑफ ब्लड ग्रुप।
तो जेनेटिक्स ऑफ एबियो सिस्टम, ओके, genetics of ABO system. So blood groups are inherited from both parents. Okay, the ABO blood type is controlled by a single gene. Okay, with 3 alleles. Okay, small I, capital IA, and capital IB. The I designation stands for isoheme agglutinogen. ओके, इसको स्मॉल एच कर दो, isohemagglutinogene. ओके, अनदर टर्म फॉर द एंटीजन. ठीक है, तो isohemagglutinogene. अगर आइसो हुआ तो नहीं होगा, अगर आइसो नहीं हुआ तो होगा. तो करता क्या है ये? So the gene encodes a glycosyl transferase enzyme, है कि नहीं? A glycosyl transferase, that is an enzyme that modifies the carbohydrate content of the RBC. Located कहाँ है? ये बहुत important है. Long arm of the 9th chromosome. Okay, long arm of the 9th chromosome. तो ये उसका नोटेशन है 9q34. तो लॉन्ग आर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से. ओके, तो लॉन्ग आर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय Q एंड 9th का मतलब क्या है? ये जो 34 मतलब है, ये 34th जीन है इन सीक्वेंस. तो समझ रहे हो, लॉन्ग आर्म 34th जीन इन सीक्वेंस. तो ये हमारा खूबसूरत हिस्ट्री हो गया. अब मैं आपको उसका जो फोटो दिखा रहा हूं, तो उसको आप देखेंगे कि ये एक्चुअली कंसेप्ट क्या है. Now please look here. Are you seeing this? ये पेज ये आपको दिख रहा है? Yes, sir. So please focus here. देख रहे हो? तो ये हमारा क्या है? So this is the group. तो अगर आप देखोगे इन सब ग्रुप्स में, जो ओ ग्रुप में ये जो डब्बा है, तो ये सब ग्रुप में वो डब्बा है. सो दिस इज कॉल्ड योर व्हाट? ये जो पार्ट, तो ये जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं H एंटीजन. इसको बॉम्बे ग्रुप बोला जाता है. ये एक और ब्लड ग्रुप है, समझे? H एंटीजन या बॉम्बे ब्लड ग्रुप. समझ रहे हो? So this is known as H antigen या बॉम्बे ब्लड ग्रुप. फाइन. सो ये जो H एंटीजन है, आप देखिए ये सब में होता है कि नहीं? यहाँ देखिए, इसमें भी है, ओके, इसमें भी है एंड इसमें भी है. अंडरस्टूड? सो बॉम्बे ब्लड ग्रुप हर एक में है ना, क्या बोल रहे हो? तो इट इज प्रेजेंट इन ऑल. बट अगर इस बॉम्बे ब्लड ग्रुप को हम लोगों ने क्या कहा था? दिस इज कॉल्ड लैक्टोजामिन. ओके, तो इसको हम लोग लैक्टोजामिन यूनिट कहते हैं, है कि नहीं? तो ये जो लैक्टोजामिन यूनिट है, अगर इसमें आप पर्पल वाला लगाते हो, दैट इज व्हाट? एन एसिटिल गैलेक्टोजामाइन. तो वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, बोलो, ए टाइप. ठीक है, तो इधर हम लोग लिख लेंगे,
This is n acetyl gal amine. ओके, तो ये है n acetyl galactosamine. अंडरस्टूड? बट अगर उसमें आपने गैलेक्टोज लगाया, सो व्हाट इज दिस? दिस इज गैलेक्टोज. तो ये क्या बन गया? तो ये बन गया बी टाइप. फाइन. तो इफ यू ओनली पुट गैलेक्टोज, ये बी टाइप. If you only put an acetyl galactosamine, ये A type. But if you put both, ये बन गया AB type. Understood? So ये हमारा है concept. And ये जो H antigen है, ये कभी हम बाद में बात करेंगे. ठीक है? So like that. So this is a very good photograph to save. ठीक है? तो इसीलिए AB blood group में आपका दोनों होगा. And like that. तो अब हम लोग इसका इनहेरिटेंस पढ़ेंगे. ठीक है? तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि आउट ऑफ द 3 एलील्स, ओके, आउट ऑफ these 3 एलील्स आपको कितना मिल सकता है? बोलिए. Out of these 3 alleles, a person can have only क्या? A person can have only 2. So out of these 3 alleles, a person can have only 2. क्यों? As there are only 2 biological parents. Okay, so out of these 3 alleles, a person can have only 2, as there are only 2 biological parents. ठीक है जी? तो so depending on which 2 alleles are present, the phenotype क्या? Varies. ठीक है जी? तो the phenotype will vary. बोले बोले ना. इसमें आप लिख सकते हो strength of alleles. तो what is the strength of alleles? तो IA is equal to IB and both of them are greater than small I या IO. तो ये हमारा स्ट्रेंथ ऑफ एलील्स है. मतलब IA और IB इक्वली स्ट्रांग है. तो इसको हम क्या कहेंगे जब इक्वली स्ट्रांग है? तो दे आर कॉल्ड व्हाट? तो इसमें आप लिख सकते हो ओके ना. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेड पॉइंट. नाउ सिंस IA and IB are equally dominant, okay, co-dominant effect is seen when both of these 2 alleles are present together. तो समझ रहे हो? So IA and IB, okay, IA and IB are equally dominant. Okay, so co-dominant effect is seen when both of these 2 alleles occur together. Okay, are present together. This
phenomena is referred to as क्या? Codominance. This phenomena is referred to as codominance. ठीक है? तो this phenomena is referred to as codominance. बोले बोले मतलब दोनों ही equally dominant हैं. The number of each, okay, the number of each sphingolipid is same on the RBC. समझा? तो दोनों में एग्जैक्टली सेम होगा. तो the number of each sphingolipid is exactly the same. Okay, on the RBCs. चलिए, तो अब उस पे हम लोग एक क्रॉस करेंगे. नाउ तो यू नो दैट हमारे पास क्या 3 एलील्स हैं, तो हमारा पनेट स्क्वायर क्या होगा 4/4. तो आप उस तरह से आप इसको 4/4 कर देंगे. गैमिट लाइन थोड़ा छोटा करेंगे. সেটা নিয়ে আউট ভেরিয়েশনটা করব. है. तो ये हमारा है. तो दिस इज योर सपोज मेल, दिस इज सपोज योर फीमेल gametes. So now what are the gametes? तो इसमें gametes क्या क्या आ जाएंगे बताइए. IA, इसको IA या सिंपली A भी लिख सकते हो. You can write IA, IB या सिंपली B भी लिख सकते हो. एंड दिस इज स्मॉल आई या IO भी लिख सकते हो. तो सेम हम लोग यहाँ लिखेंगे IA या A. ओके. एंड उसी तरह यहाँ लिखेंगे IB या B एंड इधर लिखेंगे I या IO. ठीक है. इसको I या IO या इवन O लिख सकते हैं. क्लियर. ना अब हम लोग इसको फिलिंग करेंगे. ठीक है. तो ये हमारा फिलिंग करेंगे हम लोग. तो इसीलिए now this is IA, IB, IO, IA, IB, IO. तो अब जब हम लोग क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ. So this is IA, 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 IB, IA, small I. So this is IA, IB. ये क्या होगा IB, 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 ये होगा IB, IB, IO.
हाँ आप आईओ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये होगा आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई, ये स्मॉल आई। ठीक है, तो अब फिनोटाइप क्या हो जाएगा? सो नाउ वी विल राइट द फिनोटाइप। तो ये हो जाएगा क्या? So this will be A type, क्लियर? तो ये हो जाएगा A टाइप, ये हो जाएगा ए बी टाइप, ये भी A टाइप। ओके, तो ये भी होगा ए बी टाइप, ये बी टाइप, ये भी बी टाइप। नाउ ये क्या होगा? ए टाइप, बी टाइप एंड ये ओ टाइप। क्लियर? तो दिस ए बी टाइप जो है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? कोडोमिनेंस। दिस एंड दिस आर एग्जाम्पल ऑफ codominance. Clear? And this is recessive. Now these are heterozygous, है कि नहीं? ये लोग